Okay, so welcome to the talk show, guys. This is Dr. Zui, and yes, I am back with the guest. The guest is very experienced. I can say that very much experienced, and have gone through certain phases in life that it is a plus point for us that today we are going to learn a lot from his journey. And let's not talk about it more, and let's get back to the session very soon. But the thing is, you need to be connected. Let's enjoy the session, guys, and let's know the unknown. Sir, how are you first? Yeah, I'm fine. Sir, let people know who you are. What is your introduction? Yeah, I'm Dr. Vijay Jeswani. I'm an ophthalmologist, that is eye specialist, and I have done super specialization in cornea, cataract, and LASIK surgery. And presently, I am the director of Hardev Eye Care, Wow. and we have our main branch at Lokmat Square, Nagpur, and we have just now opened our the other branch at Rameshwari, Manewada Ring Road in Nagpur. Wow, so you have two places where people can actually visit Yeah, and get the treatment done. So, yeah. how does it work? Are you always there? Like, do you have some timelines to both the places, or there is someone else who is handling the other clinic? Yeah, my wife is also ophthalmologist. She is Dr. Wow, Nikita Havani Jeswani. She is also the ophthalmologist. So we together handle both the clinics. wow. Like it's like पूरा knowledge घर पे ही है. Like both of you are completely knowledgeable about it, and you can treat people. Like this is really nice, awesome. Congratulations on both the clinics and all of your journey. Thank you, thank you, thank you. अमेजिंग. ओके, तो मतलब एक वंडरिंग है, लाइक हर कोई अपना अपना एक फील्ड चूज करता है, तो आपने Mm. ऑप्थेल्मोलॉजी को ही क्यों चूज किया? ऐसा क्या अट्रैक्शन था उसमें कि आपने ऑप्थेल्मोलॉजी को चूज कर लिया? सो व्हाट वाज द मेयर अट्रैक्शन इन ऑप्थेल्मोलॉजी? Ophthalmology is a branch which is a very rewarding branch. Uh, if patient has cataract, so before cataract, the vision of the patient is very less, and when we operate him or her, then after the surgery, the patient regains the vision. So it's like rewarding. Also, same like in LASIK, if a patient has -6, -7, -8 number, and when we do the LASIK surgery and patient gets fully corrected, then the patient doesn't has any number, and she or he is able to see without glasses. या. So the kind of satisfaction we get in our field is tremendous. वाओ. लाइक लाइक दीज देयर वर फ्यू वीडियोस अर्लियर जिसमें ऐसा दिखता था कि मूवीज में भी दिखाते थे, लाइक there is no vision at all to a person, and suddenly when you go through a surgery the vision comes back, the eyes are better, you could Yeah, see the color yeah, of yeah, yeah, everything, yeah. and we would feel after watching the movie like, okay, this is actual magic. So where do we Hmm. find these people who would create such magic? I am the same specialist that I have done super specialization in cornea. So Wow. in ophthalmology also I have done super specialization in cornea. So being cornea specialist, if some patient's cornea gets damaged, then he Okay. is not able to see at all. Okay. Then we get the corneal tissue from someone who has donated after the Okay. death. So then we collect the tissue, then we process the tissue in eye bank, and then we call the deceased cornea patient, and then we transplant the new cornea in that patient. So that Wow. patient was having no vision at all before the surgery, and after cornea transplantation, he gets the vision. Okay, so for So that's that why I say that it's a rewarding branch. okay, so but do we have banks? जैसे blood bank होता है, skin bank होता है. So do we have a specific bank for this? या आई बैंक, उसे आई बैंक कहते हैं. तो Okay. आई बैंक एक ऐसी चीज रहती है जहाँ पे जैसे कोई डिसीज पर्सन है जिनकी डेथ हो गई है,
एंड उनके रिलेटिव चाहते हैं कि हम इनका आय जो है डोनेट करना चाहते हैं। तो ओके। हमारी टीम उनके घर पे जाती है, उनका आय कलेक्ट करती है। तो पहले के जमाने में ऐसा था कि पूरा का पूरा आय निकाला जाता था, बट ओके। अभी ऐसा है कि सिर्फ कॉर्निया निकाला जाता है, बिकॉज वी ट्रांसप्लांट कॉर्निया ओनली। कॉर्निया ही हमारे काम का रहता है। तो हम जस्ट जाते हैं पेशेंट के घर पे, एंड वी जस्ट कलेक्ट द कॉर्निया एंड देन वी ट्रांसप्लांट ओह, दैट इज रियली नाइस एंड इट्स कंप्लीटली मैजिकल। इट। या। बिकॉज बहुत छोटी सी चीज है वो। हाँ। उसको हैंडल करना, उसको completely अच्छे तरीके से प्लांट करना, एंड देन हाँ। हैव अ गुड फीडबैक ऑल्सो, रिजल्ट भी अच्छे मिलना, इट्स लाइक वेरी टफ। एंड यू डू हम्म। इट लाइक, आपको कितने साल हो गए सर? लाइक हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू मुझे हैव? मुझे अराउंड 2012 से अभी 2023, अराउंड 10 to 11 years। वाओ, आपने तो बहुत कुछ देख लिया होगा, लाइक रिलेटेड जो भी ओल्ड था, मतलब ओल्ड कंसेप्ट्स के हिसाब से जो भी चीजें होती थी वो भी आपने देखा है, और न्यू प्रैक्टिसेस भी आपने देखी होगी अभी जो रिसेंटली आ रही है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये बहुत बड़ा फेज है सर आपका। आई वॉन्ट टू हम्म। नो what were the literal troubles you have faced in your this, like this part of your journey? देखो, डॉक्टर प्रोफेशन एक ऐसा रहता है कि जिसमें काफी टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा लगता है। जैसे आफ्टर 18 years वी गो फॉर द एमबीबीएस, Yeah. then 4.5 years we do the graduation, that is MBBS, Yeah. and then 1 year internship, that is 5.5 years, then 1 year entrance exam for the post graduation. Okay. So 7.5 years, 6.5 years, then 3 years for the post graduation, and then we go for the fellowship again for the 3 years. So it's like around 9 to 10 years, 9 to 12 years of long journey to, and after that we come in our city, then we start our practices. Either we go for a job or we start our own. So it takes long time to start our practice. उतने टाइम में तो हमारे जो फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग वाले रहते हैं या फिर जो सीए वगैरह रहते हैं, वो काफी ऊपर जा चुके रहते हाँ, like their cycle is completely different. हमको हैं। हाँ। it is all about a body part. Obviously, you are specializing in a body part, so it is going to take a lot of energy of yours. पूरा knowledge लेना पड़ता है, in and out पता रहना चाहिए. But like the literal trouble, where did you find like कि हाँ अभी बहुत तकलीफ हो रहा है, this is too much, and you could not take that journey? तो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, ऐसा कोई पॉइंट आपको याद आ रहा है? नहीं, फ्रस्ट्रेट तो नहीं हुआ। डॉक्टर प्रोफेशन मेरा जस्ट ड्रीम प्रोफेशन था, इसलिए मैं इस प्रोफेशन को एंजॉय करता हूँ। मैं कभी भी ऐसे उसको एज ए ट्रबल की तरह नहीं लेता हूँ। मेरे पेशेंट्स वाह। मुझे रात को 12 बजे भी फोन करते हैं तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आई जस्ट एंजॉय माई प्रोफेशन। एज आई एम अ डॉक्टर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेशेंट्स, दैट्स वाह। इट। मेरी एक फ्रेंड है वर्षा हेमनानी, आई थिंक यू जी रिमेम्बर, जी जी। आपने उसका लेसिक या। सर्जरी किया था। जी 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 जी। She yesterday texted me, she saw the post and she was like कि या। such a small world that you are going to interview my doctor. Yeah, I just was today like, she messaged me that yeah. Dr. Jui is my schoolmate. Yeah. And the time when she was talking about her surgery, जो भी हुआ उसके बाद Hmm. जो भी उसने ये प्रोग्रेस देखा है, she is like, she Hmm. is so happy, she is not going to use specs, she is not going to have problems with her eyes ever. और वो एक बार का बैठ गया, मतलब she is comfortable, so that's what every Yeah, patient needs, right? yeah. तो as I have seen your journey now, like थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया, you have invested your many years in this. Okay. तो इसमें आपका एक ड्रीम होगा. So what was the dream, and are you actually living in your dream today? देखो, वैसे देखा जाए तो स्मॉल स्मॉल गोल्स तो काफी रहते हैं, तो दैट आई एम जस्ट अचीविंग स्टेप बाय स्टेप। Mm-hmm. बट जो एक लार्ज गोल है, या फिर आप उसे ड्रीम भी कह सकते हैं,
वो ये है कि भारत के हर कोने से कोने तक के हमें आई सर्विसेज पहुंचानी है। दैट वी हैव टू जो भी रिमोट एरियाज में भी जो लोग रहते हैं जो इन सेवाओं से वंचित है, द हाँ। पीपल हु आर having deficiency of the eye services in remote areas, so we have to approach them and provide them the eye services। ऐसी काफी एरियाज है, जैसे कि हम तो एक मेन सिटी में रहते हैं तो हमें कुछ पता नहीं रहता है कि रिमोट एरियाज में क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम कभी टाइम मिले तो अगर हम जब कभी घूमने फिरने भी जाते हैं तो हम काफी रिमोट एरियाज में भी जाते हैं, कहीं हाँ। ट्रैकिंग करने जाते हैं, कहीं कुछ चीजों के लिए जाते हैं। तो अगर हम एक राउंड भी मार लें तो ऐसी काफी रिमोट एरियाज है जहाँ पे लोगों के पास वो आई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे आसपास डॉक्टर्स नहीं है। तो मेन गोल मेरा यही रहेगा कि मैं अपने हॉस्पिटल की इतनी सारी ब्रांचेस खोलूं कि भारत के हर कोने में एक स्मॉल आई क्लिनिक तो भी रहना चाहिए, ताकि अगर किसी पेशेंट को आई प्रॉब्लम होती है so he just can avail the facilities। वाह, अल्टीमेट गोल दिस इज। आई एम श्योर आपने मतलब अम, हर एक डॉक्टर का एक ड्रीम होता है कि उनका खुद का कुछ क्लिनिक रहे या ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पर वो सर्विसेज भी दे पाए प्लस उनका ग्रोथ भी हो। तो आपकी इस जर्नी में आपको कहाँ लगा कि आपका ग्रोथ हो रहा है? वेयर डिड यू फाइंड योरसेल्फ ग्रोइंग? जैसे मैं फेलोशिप करने के बाद नागपुर में आया, एंड फिर मैंने नागपुर में एक मल्टी स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल ज्वाइन किया। एंड जैसे कि मैं हैदराबाद से जो फेलोशिप किया था तो वहां से मैं स्किल्स तो बहुत एक्वायर करके आया। फिर स्किल्स को जो मैं अप्लाई करने लगा, सर्जरीज करने लगा, तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई एम ग्रोइंग, एंड मेरा हाथ भी अच्छा बैठ गया है, एंड पेशेंट्स आर ट्रस्टिंग मी, एंड काफी वीआईपी लोग मुझसे सर्जरी करवा रहे थे। वाओ। एंड अभी भी वो चालू है कि कोई भी वीआईपी पेशेंट्स रहता है बिंदास सर्जरी करा लेता है, वो उसे पता है कि डॉक्टर जेसवानी है, तो वी आर इन सेफ हैंड्स। तो बस उसी वक्त लगा कि दैट आई एम ग्रोइंग एंड द गुड फेज हैज स्टार्टेड। वाओ, लाइक पीपल स्टार्टेड टू एक्सेप्ट यू व्हाटएवर यू डिड। या उनको ये भी या समझ में आ गया कि सिर्फ एक या दो लोगों से नहीं समझ में आ रहा है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी टेकन दैट ट्रीटमेंट फ्रॉम यू एंड दे आर स्पीकिंग गुड अबाउट यू। सो हर एक डॉक्टर के लिए यही होता है, वर्ड ऑफ माउथ ही सबसे बड़ा फीडबैक होता है। एक्चुअली आई एम मुझे श्योर। जब जब एक बड़े हॉस्पिटल में 4 इयर्स तक जॉब करने के बाद फिर जब मैंने अपना छोटा सा स्मॉल सेटअप स्टार्ट किया, हाँ। जो कि इट वाज नॉट इवन 1/10 ऑफ दैट बिग हॉस्पिटल, ओह। तो वो हॉस्पिटल के जो पेशेंट थे वो हॉस्पिटल छोड़ के मेरे पास आते थे, एंड वो वाह। बोलते थे सर सर्जरी आपसे ही करवाना है। सो दैट टाइम आई यूज टू गेट शॉक कि ये कैसे हो रहा है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल विच इज 10 to 20 times ऑफ माई हॉस्पिटल, यस। वो पेशेंट्स उतना बड़ा हॉस्पिटल छोड़ के मेरे पास आ रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि सर सर्जरी तो आपसे ही करवाना है। सो दैट टाइम आई रियलाइज दैट आई हैव build up that trust, that patients have are trusting me। लाइक ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, अदरवाइज हमारा हमने कुछ भी सेटअप कर लो नहीं चलेगा। बिकॉज हम्म एज सुन एज यू आर न्यू इन द सिटी, न्यू लोगों के पास वो उतनी भीड़ नहीं जा पाती है। यू हैव टू क्रिएट समथिंग इन द पास्ट, तब जाके वो तुम्हारे पास उतना क्राउड आता है। एंड ऑल्सो दैट हम्म क्राउड इज फुल्ली ट्रस्टिंग यू, सो फॉर देम लोकेशन डजेंट मैटर। लाइक आप कहाँ पे भी कुछ हम्म भी खोल दोगे ना, वो आने ही वाले हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव गिवन देम द हम्म बेस्ट सर्विस। हम्म राइट। ओके। तो इसके हिसाब से आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा एक प्रोसीजर है जो सिर्फ आपने किया है और किसी ने नहीं किया है, प्लस वो आपके लिए एक बड़ा सक्सेस भी हुआ होगा। सो व्हाट इज दैट प्रोसीजर? इज देयर समथिंग लाइक दैट? या जैसे फेमटो सेकंड लेसिक सर्जरी है या फिर फेमटो सेकंड कैटरेक्ट सर्जरी है, ओके। दैट आई एम द फर्स्ट सर्जन टू परफॉर्म इन द नागपुर। वाओ। सो नागपुर में
मेरे आने के पहले तक वो प्रोसीजर किसी ने परफॉर्म नहीं किया था. So I'm the first surgeon to perform femtosecond LASIK surgery and femtosecond cataract surgery. Okay, so it was only in Nagpur? नो, मेट्रो सिटीज में वो सर्जरीज होती है जैसे दिल्ली या फिर हैदराबाद, मुंबई. बट नागपुर में फर्स्ट टाइम आई हैव डन इट. You did it. Wow. Like this is like a good success point for you. या That's right. That's really nice. Okay, so when was it that you said yourself like I need to have principles, मेरे कुछ principles होने चाहिए, मुझे और improvement लानी चाहिए. As soon as you have come to know there are some patients जिन्होंने शायद आपको कभी ना कभी वो positive feedback ना दिया हो, तो आपने अपने आप को थोड़ा बहुत change किया ही होगा कि हाँ शायद ये crowd को ये चाहिए, पुराने वाले crowd को जो जैसा था वैसा चाहिए, नए वाले crowd को कुछ और चाहिए. तो what services, new services you have given to them? देखो, मैं अपने प्रोफेशन में काफी सारी पॉलिसीज रखता हूँ. एंड मैं अपने लाइफ में भी काफी सारे प्रिंसिपल्स रखता हूँ. जैसे कि मेरे लाइफ का फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो हॉनेस्टी. हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. जैसे कि अगर हम अपने प्रोफेशन में ईमानदारी रखते हैं, हम अपने पेशेंट्स के साथ ईमानदारी रखते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. Correct. मेनली ऐसा है कि अ, हमें बस अच्छा करना है. वो चाहे वो पेशेंट के लिए हो या चाहे वो पर्सनली किसी लाइफ में किसी किसी के लिए हो, बस हमें अच्छा करना है. तो बस मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरा पेशेंट है उसे मुझसे कभी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए. एंड मैं अपने आप को सबसे पहले उस पेशेंट की जगह पे रख के देखता हूँ कि मुझे सामने वाले से क्या चाहिए. Right. तो जैसे कि पेशेंट को एक गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए रहता है, उसके बाद फिर उसको एक रीजनेबल कॉस्ट चाहिए रहता है. ऐसा नहीं कि गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट आप हाई कॉस्ट पे दे रहे हैं. तो एक गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट एक रीजनेबल कॉस्ट हो एंड एक गुड केयर एंड एक डॉक्टर पेशेंट हेल्दी रिलेशनशिप, ये अगर रहा तो फिर आपका पेशेंट कहीं नहीं जाएगा, वो घूम फिर के आपके पास ही आएगा. That's the एंड nice सेकंड thing. थिंग. हाँ, बोलिए जी. बोलिए. आप बोलिए. तो सेकंड थिंग हार्ड वर्क. हार्ड वर्क यानी मेरा पेशेंट मुझे कभी भी फोन करता है तो Okay. मैं कॉल पिकअप करता हूँ. एंड मैं अपने हर पेशेंट को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे देता हूँ. मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा पेशेंट मुझे बार बार फोन करेगा, परेशान करेगा. मैं किसी शादी में हूँ तो भी फोन करेगा, मैं नींद में हूँ, सो रहा हूँ तो भी फोन करेगा. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हर पेशेंट को फोन नंबर दूं एंड उसको कुछ तकलीफ होगी तो ही वो मुझे फोन करेगा. Right. एंड तो इसलिए मुझे रात को 12 बजे भी अगर फोन आता है तो मैं पेशेंट का फोन पिकअप करता हूँ एंड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ. मेरा एक पेशेंट था जो कि नागपुर में ही था. उसके बाद फिर वो कोल्हापुर शिफ्ट हो गया. तो कोल्हापुर से वहां से उसने मुझे फोन किया. अब मुझे पता था वो कोल्हापुर शिफ्ट हो गया, अब वो कभी नागपुर नहीं आएगा. Okay. तो वहां से उसने मुझे फोन किया कि सर कुछ सबसे पहले तो फोन किया तो मैंने उसका फोन पिकअप किया. मैंने ये नहीं सोचा कि अभी ये कोल्हापुर शिफ्ट हो गया, अभी ये मेरे कोई काम का नहीं है, अभी तो मेरे पास कभी आएगा भी नहीं. तो मैंने जस्ट उसका फोन पिकअप किया. उसने बोला कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है. मैंने उसको बोला कि आप मुझे वीडियो कॉल करो और फिर मैं आपको बताता हूँ. फिर उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया, फिर मैंने देखा कि उनके आई में इन्फेक्शन था एंड फिर मैंने मेडिकेशंस उनको व्हाट्सएप पे कर दिया. तो वो मेडिकेशन से ठीक भी हो गए. एंड मैंने उनको बोला अगर ज्यादा तकलीफ होगी तो आसपास के डॉक्टर को दिखा देना. तो वैसी नौबत नहीं आई एंड वो ठीक भी हो गए. तो वो पेशेंट के दिल में मैंने एक जगह बना ली. वो पेशेंट भी फिर मुझे बहुत मानने लगा कि हाँ, कि इतना दूर से भी मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ सिर्फ, तो वो खुद मुझे बोल रहे हैं कि वीडियो कॉल कीजिए मुझे एंड मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. तो बस वही है. Nice. Like आपका honesty and hard work. Like these are the like best principles, I guess. शायद इसी बेसिस पे हर एक का कोई भी स्टार्टअप हो या कोई भी बिजनेस हो या कोई भी जर्नी हो, कोई भी जॉब हो, सक्सेसफुल तो होता ही है. तो आप अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, दिस इज लाइक
टोटली प्रोफेशनल, पर्सनल हम्म लाइफ में आप ये सारे प्रिंसिपल्स को कितना तक फॉलो कर पाते हो? एंड लाइक प्रोफेशन इज लाइक योर पैशन, फाइन, यू आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट कैन यू बैलेंस all of those principles in personal life as well as professional life? हाँ, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग पर्सनल बिहेवियर से ही होती है। जैसा आपका पर्सनल बिहेवियर रहता है वही आपके प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट करता है। Right. तो पर्सनली जैसे आप रहते हो वैसे ही आप प्रोफेशनली भी रिफ्लेक्ट करते हो। तो वही सबसे पहले तो आपको आपके पर्सनल बिहेवियर में वो चीजें लानी पड़ती है, जैसे कि हॉनेस्टी है या फिर हार्ड वर्क है। पर्सनल बिहेवियर में आने से फिर वो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। बट सो आई ऐसे फॉलो इन आपने पर्सनल देखा बिहेवियर होगा आल्सो। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो माल प्रैक्टिसेस करते हैं, लाइक उनके बिल्कुल। प्रिंसिपल्स काफी अलग होते हैं, लाइक दे आर जस्ट फॉर मे बी थोड़ा सा नेम के लिए, फेम के लिए, और मे बी फॉर मनी। तो हम्म आपका क्या कहना है, लाइक डू यू रियली फाइंड सच पीपल इन योर लाइफ हु हैव टेकन एडवांटेजेस ऑफ इनोसेंट पीपल, पेशेंट्स, और वो किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली द डॉक्टर्स, ऐसे लोग आपको हर फील्ड में मिलेंगे। चाहे वो कोई किराने वाला हो जो सामान बेच रहा है, चाहे वो कोई इलेक्ट्रिकल वाला हो जो सामान बेच रहा है, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, चाहे वो कोई कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो सीए हो। जो आपका सीए है, हो सकता है वो भी आपके साथ माल प्रैक्टिस कर रहा है। तो ऐसे आपको हर प्रोफेशन में मिलेंगे। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। या। पेशेंट को स्मार्ट रहने की जरूरत है। सो फर्स्ट नो योर डॉक्टर। नो यस। योर डॉक्टर कि उनका एजुकेशन कहाँ से हुआ है, उन्होंने कितने सर्जरीज परफॉर्म किए हैं, उनका हाथ कैसा है, इधर उधर से जानिए एंड थोड़ा सा इंक्वायरी कीजिए एंड उसके बाद लगे तो उनसे सर्जरी करवाइए। हाँ चलो ठीक है, ओपीडी चेकअप कराना है तो आप किसी के भी पास जा सकते हैं। बट अगर आप कोई बड़ी चीज करवा रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप किन के हाथों में है। सो इट्स जस्ट पर्सनल स्मार्टनेस विच विल गिव बेनिफिट। बट सर ऐसे भी इंस्टेंसेस आते हैं जिसमें पेशेंट पूरी स्टडी करके तो जाते ही है, उनकी हम्म कंडीशन हो या डॉक्टर हो, तो बट हम्म स्टिल ऐसी चीजें होती है जिसमें रिपोर्ट्स में अलग दिखाया जाता है कि हाँ तुमको ये नहीं, ये मेजर प्रॉब्लम है, जबकि उसको कुछ भी नहीं होता है। तो जो पेशेंट को दिखाओगे वो बिलीव करेगा, क्योंकि उसको उस फील्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हम्म एंड देर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स, इनोसेंट पीपल, जो जिनका बेवजह वो सर्जरीज हो गया है या करेक्शंस हो गया है, एंड देन नाउ दे आर लाइक, मतलब दे आर लिविंग विद इट। हाउ डू वी सो हैव टू कम टू नो अबाउट दीज पीपल, लाइक कैसे करना चाहिए करेक्शन? सो ऑलवेज क्रॉस चेक, ऑलवेज टेक सेकंड कंसल्टेशन। ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला डॉक्टर आपको मिसगाइड कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज स्मेलिंग फिशी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले डॉक्टर को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, इन दोज कंडीशंस जस्ट टेक द सेकंड ओपिनियन। दैट्स नाइस। सो सेकंड ओपिनियन ही एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एंड जब दो डॉक्टर्स ने आपको सेम चीज बोल दी कि हाँ ऑपरेशन लगेगा, तो इसका मतलब है हाँ लगेगा। लेकिन अगर एक बोल रहा है लगेगा, एक बोल रहा है नहीं लगेगा, तो फिर आप सोच सकते हैं कि व्हाट वी शुड डू। सो ऑलवेज टेक सेकंड ओपिनियन इफ यू आर इन डाउट। बट आपको पता है कि आपका डॉक्टर अच्छा है, देन नो नीड टू टेक सेकंड ओपिनियन। राइट। हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं मिथ्स होते हैं, तो आपने तो बहुत सारा जर्नी देख लिया, लाइक 12 years, लाइक दिस इज टू मच। तो आपने तो देखा ही होगा कि कौन से मिथ्स रह चुके हैं, लाइक ओल्ड पीपल, यू हैव बीन गेटिंग ओल्ड जनरेशन पीपल, न्यू जनरेशन के पेशेंट्स, तो आपने क्या डिफरेंस देखा? वेयर कैन यू फाइंड दोज मिथ्स एंड हाउ डिड यू करेक्टेड देम? ऑप्थेल्मोलॉजी में मिथ से कुछ ऐसे देखे हैं कि कुछ लोग दावा करते हैं कि हम ड्रॉप से कैटरेक्ट को ट्रीट कर देंगे। ड्रॉप से? हाँ, बट कैटरेक्ट एक ऐसी चीज है विच विल गेट क्योर्ड बाय सर्जरी ओनली।
मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे हैं कुछ फर्जी डॉक्टर्स के, जो फर्जी डॉक्टर्स है ना, नॉन एलोपैथिक, ओके। यानी कोई बहुत ही यानी कोई तो भी उनकी डिग्री रहती है या तो शायद से डिग्री भी नहीं रहती है, बट ओके। वो ऐसे मेगा कैंप्स लेते हैं। उसी दिन एक वीडियो आया हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी ग्रुप पे, यानी वो वीडियो देख के हम इतना हंसे कि क्या बताएं हम आपको। वो यानी उसने एक मेगा कैंप लिया उस पर्सन ने, एंड कुछ तो भी जड़ी बूटियां रखी, और लोगों को बोल रहा है कि इससे मैं आपका नंबर जो है जीरो कर दूंगा, इससे जो है मैं आपका जो कैटरेक्ट है पूरा रिमूव कर दूंगा, इससे जो है आपकी नजर जो है एकदम बढ़ जाएगी। एंड वहां पे लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि क्या ये पॉसिबल है। हम्म। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, बस सामने वाला आपको जस्ट आपके माइंड पे हैमर कर रहा है कि मैं आपका नंबर जीरो कर दूंगा, आपको चश्मा लगाने की इसी पे जरूरत नहीं बिलीव पड़ेगी। करते हैं यार लोग, इसी पे तो ज्यादा बिलीव करते हैं। सी द थिंग इज दे डोंट वांट, दे वांट एवरीथिंग टू बी कंजर्वेटिवली डन, लाइक डैमेज ही ना हो, कोई हाथ भी ना लगाए हमको, क्योंकि हम वो देख नहीं सकते। सो अल्टीमेटली दे मूव टुवर्ड्स सच पीपल ओनली। हाँ हाँ। तो वी कैन लाइक, एंड देयर आर पीपल हु कनेक्ट्स ऐसी सब चीजों को भगवान से जोड़ देते हैं, या फिर कोई सुपरस्टिशंस के साथ जोड़ देते हैं। तो पीपल आर लाइक, बाकी सब जाने दो साइड में, इन पे फोकस करेंगे। तो ऐसे हेलो। टाइम पे करेगा क्या आम आदमी? वो तो जाएगा ही, वो तो करवा ही लेगा। उल्टा वो और तकलीफ में जाएगा, वो इशू बढ़ के आ जाएगा, एंड देन दे विल सी अ डॉक्टर। मैं वही कह रहा हूँ कि हमेशा पेशेंट को स्मार्ट बनना ही पड़ेगा, एंड उससे सही डॉक्टर पहचानना ही पड़ेगा। अब हमारे पास कुछ कॉर्नियल इन्फेक्शन के केसेस आते हैं, हम्म। जैसे कि किसी को आंख में थोड़ा सा पेन हो रहा है जस्ट, तो गांव में क्या करते हैं कि उसके आंख में कुछ तो भी कोई तो फूल रहता है, उसका रस डालते हैं। तो उससे उसकी आंखों में उसका जो पेन है और ज्यादा बढ़ जाता है, एंड उसको इन्फेक्शन बैठ जाता है। एंड इन्फेक्शन, एक कॉर्नियल इन्फेक्शन एक ऐसी चीज होती है कि पूरा पूरा कॉर्निया आपका डैमेज कर सकती है। ओ मतलब विजन बहुत बड़ा क्वेश्चन में जा सकता है, विजन लाइक हाँ हाँ डैमेज हाँ हो हाँ। सकता ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि गांव में कोई तो भी फूल का रस डाल दिया आंखों में। है। ये कौन बताता होगा सर? आई मीन ये लोग तो ज्यादा ही सीख के आते हैं आई गेस। गांव में वैसी प्रैक्टिसेस ज्यादा है कि गांव में कोई भी पेशेंट को कुछ भी बता दिया तो वो फॉलो कर लेते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं। ये ब्लाइंड प्रैक्टिसेस जो थोड़ा गांव वाले एरियाज है वहाँ पे बहुत ज्यादा फॉलो होती है। तो शायद यहाँ पर आपका विजन काम आएगा कि यू विल बी एबल टू ओपन हाँ। योर स्मॉल क्लिनिक, जहाँ उनको हम्म। लाइक सही नॉलेज मिले और सही ट्रीटमेंट भी मिले। हाँ। और कोई ऐसा मिथ सर, लाइक सर्जरी के बाद क्या होता है, सर्जरी के पहले क्या होता है? लाइक पेशेंट पहले ही आपको बता देता है कि हाँ ये सर्जरी के बाद मेरे को ये होने वाला है। ऐसा कुछ आपने कभी सुना है? जैसे। जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ, अगर मैंने हाँ। दांत में कहीं एलए डाल दिया है, अभी हम लोगों को हम्म। यहाँ का ट्रीटमेंट करना है तो हम एलए डालेंगे, स्पेसिफिक वो टूथ से रिलेटेड को एलए डालेंगे। तो अगर हमने यहाँ हम्म। ऊपर की तरफ दे दिया है समझो, मोलर्स प्री हम्म। मोलर्स के लिए, तो वो पेशेंट बोल देता है कि मेरी आंखों का विजन चले जाएगा क्योंकि आपने वहां पर एलए डाल दिया है। तो अच्छा। दिस इज लाइक वन ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, लाइक हमारा विजन इज हैम्पर्ड बिकॉज हम लोग वो दांत का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो पीछे का जो दांत है वो कम्प्लीटली हम्म। जॉइंट है आंखों के साथ, और अगर वहां कुछ किया तो हमारी आंख खराब हो जाएगी या चली जाएगी। तो दिस इज लाइक वन थिंग दैट द पीपल कम एंड टेल अस कि हाँ अच्छा। ये होगा। तो ऐसा कोई आपके प्रोसीजर पास? कराने के पहले ही बोल देते हैं। हाँ हाँ, पहले ही बता देते हैं। दैट टाइम वी क्वेश्चन आवर जर्नी कि भाई हम लोग क्या सीख रहे हैं, लाइक दे नो सच स्टफ, और उनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। अच्छा। तो दिस इज लाइक क्लासिक मिथ हमारे पास जो रिलेटेड टू आई है। तो हम्म। इज देयर एनी मोर क्लासिक मिथ दैट यू हैव? नहीं, बस हमने वही वीडियोस में देखा है, एंड कहीं कहीं पे ऐसे फर्जी कैंप लिए जाते हैं कि बताया जाता है कि
हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपका नंबर जीरो कर देंगे, आपका कैटरेक्ट आपका पूरा चला जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो बिना डॉक्टर कंसल्टेशन, प्रॉपर एलोपैथिक डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फर्जी लोग आपको लाइफ में आपके मिलते रहेंगे। बट वो आपको समझदार होना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। राइट, ओके। रिसेंट में कोई आपने एक शॉर्ट गोल रेडी किया है और आप उस पे काम कर रहे हैं, तो आई वांट टू नो, इज देयर एनी शॉर्ट गोल ऑन द लाइन? शॉर्ट गोल, जी हाँ, जैसे अभी फिलहाल हमने अपनी सेकंड ब्रांच खोली है। अभी हम एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। बट अब इसी को हम एक बड़ी लेवल पे करना चाहते हैं, जहाँ पे हम आय के हर छोटी से छोटी ब्रांच के जो सुपर स्पेशलिटीज है, जैसे आई में भी बहुत सारी चीजें रहती है, या जैसे कॉर्निया है, फिर रेटिना है, फिर स्क्विंट है, फिर ग्लोकोमा है। तो ऐसे सभी डॉक्टर्स को हम इन्वॉल्व करें, ताकि पेशेंट को एक सुपर स्पेशलिटी सर्विस मिले। लाइक दे डोंट हैव टू वंडर अराउंड, दे कैन गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। या सो वी जस्ट वांट टू क्रिएट ऑल फैसिलिटीज एट वन रूम। वाओ, आई रियली होप वो जल्दी बने। ओके, तो सर अगर आपके पास एक चांस है, लाइक अ चांस टू गाइड अ बंच ऑफ पीपल, तो व्हाट की पॉइंट्स विल यू मेंशन देम? विच बंच ऑफ पीपल? Anyone, like there are people who would come ओके, not only for एनीवन। related to eye, but स्पेसिफिकली उसका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, या फिर हम लोग खुद से क्या करें, या फिर अगर मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना है, या फिर वी कैन नॉट अफोर्ड दिस सर्जरी एंड ऑल, सो व्हाट थिंग्स दैट वी कैन डू लाइक ऑन द पेशेंट बेसिस, तो आप उनको गाइड कैसे करोगे? व्हाट पॉइंट्स विल यू टेल देम? नो, इट्स आई रिलेटेड और जस्ट जनरल? यू कैन टॉक अबाउट जनरल, दैट इज फाइन, जनरल इज गुड। नो, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। Okay, so in your life there might be some हम्म, people, it's not only about profession, I'm talking about real life thing, like हम्म, आपके पास हम्म। ऐसे patients आए होंगे जिन्होंने आपकी लाइफ चेंज की होगी, अच्छा। while listening to their story, while listening to their background, you have felt ओके। like I need to do something more. तो अगर हम्म, आपके पास ऐसा बंच आ जाता है, like there are like 10 to हम्म, 15 people who have inspired you, their journey have हम्म। inspired you, तो आप उनको कैसे गाइड करोगे कि आप बेटर रहो, या फिर आप अपना कितना पार्ट उनको दोगे सो दैट दे विल लर्न बेटर फ्रॉम यू आल्सो? मुझे लगता है कि सबको अपनी लाइफ में जस्ट फोकस रहना चाहिए। आप जो भी प्रोफेशन में है, आप अपने प्रोफेशन पे फोकस रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, एंड सिंसियर रहिए, एंड हमेशा अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का, या हमारी लैंग्वेज में अपने पेशेंट का बेनिफिट कीजिए। किसी न किसी रूप में आप उनका बेनिफिट करा के दीजिए। जो उनको बाहर सर्विसेज मिलती है वही उनको लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी सर्विसेज देके उनका बेनिफिट कराइए। तो जैसे कि आप अपने कस्टमर का जितना बेनिफिट कराएंगे, उतने कस्टमर्स आपके बढ़ते जाएंगे, उतने उतने क्लाइंट्स, उतने पेशेंट्स आपके बढ़ते जाएंगे। सो अगर आपको अपना प्रोफेशन वाइज ग्रोथ चाहिए, तो आपके लिए आपका पेशेंट जो है वो भगवान के जैसा होना चाहिए, कि आप अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं। राइट, तो अपने पेशेंट के लिए जितना किया जाए उतना कम। जैसे भगवान के लिए जितना किया जाए उतना कम, तो राइट। वैसे ही अपने पेशेंट के लिए जितना किया जाए उतना कम। और हमेशा अपने पेशेंट को ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे कि वो आपका फादर या मदर है। यानी अगर आपके फादर में आप कोई इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करना चाहेंगे, तो ही वही इन्वेस्टिगेशन भी उसमें एडवाइस कीजिए। अननेसेसरली इन्वेस्टिगेशन एडवाइस मत कीजिए। तो उसको जस्ट अपना फैमिली मेंबर समझिए। ऐसा सोचिए कि अगर उसका पैसा जा रहा है तो आपका भी पैसा जाएगा। या तो अगर आपने उसको जानबूझ के कोई इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की है, तो समझ लीजिए आपका भी पैसा जाएगा। समझ लीजिए कि वो आपके घर का पेशेंट। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप उसके भी पैसे बचाइए।
तो ऐसे अगर आप के मन में रहेगा, चाहे वो पेशेंट को पता हो या नहीं पता हो, हम्म। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो चीज पेशेंट को पता होना चाहिए कि आप पेशेंट का फायदा करा के दे रहे हो, आप पेशेंट का एकदम कम इसमें करा के दे रहे हो। ये चीजें ऐसी रहती है जो पता चल ही जाती है पेशेंट को, आपके बिहेवियर से, आपके बातों से, एंड आपकी अप्रोच से, हाउ यू आर अप्रोचिंग देयर डिसीज, उससे पेशेंट को पता चल ही जाता है। सो ऑलवेज बी हॉनेस्ट इन योर प्रोफेशन, so that honesty will reflect and patient will get to know, and माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आपका प्रोफेशन और बढ़ते जाएगा। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, तो लाइक देर आर सम ओल्ड प्रैक्टिसेस जो आपने देखी होगी, एंड देर आर सम हम्म। न्यू प्रैक्टिसेस। तो आप हमको हम्म। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता सकते हो, लाइक ओल्ड में कैसा होता था और अभी न्यू में क्या आया हुआ देखिए, जब ऑप्थेल्मोलॉजी का अगर मैं आपको 1950 1960 का सिनेरियो बताऊं, तो है? उस टाइम पे आई सर्जरी में एक ही सर्जरी थी जिसे कि MSICS कहते हैं, यानी कि इट्स अ मैनुअल सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी। ये मैं कैटरेक्ट सर्जरी की बात कर रहा हूँ। दैट ओके। वाज मैनुअल वन, उसमें बड़ा इंसिजन दिया जाता था, एंड फिर वो बड़े इंसिजन से कैटरेक्ट निकाला जाता था, एंड कैटरेक्ट के जगह पे लेंस नहीं डाला जाता था, क्योंकि उस जमाने में लेंसेस रहते ही नहीं थे। तो हाँ। जस्ट कैटरेक्ट निकाला जाता था, एंड फिर विजन देने के लिए पेशेंट को एक बड़े नंबर का चश्मा लगाया जाता था। ओके। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद फिर जैसे लेंस का इवोल्यूशन हुआ या डेवलपमेंट हुआ, तो फिर कैटरेक्ट निकाल के फिर वहां पे इंट्राओक्यूलर लेंस डाला जाता था। तो उससे फिर बड़े नंबर का चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक सबसे बड़ा इवोल्यूशन था ऑप्थेल्मोलॉजी फील्ड में। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट इवोल्यूशन क्या आया, जैसे कि हम मैनुअल तरीके से कैटरेक्ट सर्जरी करते थे, बड़ा इंसिजन देके, उसके बाद फेको सर्जरी आई, फेको इमल्सिफिकेशन, दैट इज कैटरेक्ट सर्जरी विथ मशीन। तो ओके। उसमें इंसिजन साइज इज मिनिमल। ओके। हाँ, तो उससे काफी पोस्ट ऑपरेटिव केयर एकदम इजी हो गई, कॉम्प्लिकेशन रेट एकदम डाउन आ गया। तो ये सब एडवांसेस हुए हैं। तो अभी भी जो सर्जरी चल रही है, फेको ही चल रही है, एंड आगे फेमटो लेजर वगैरह कैटरेक्ट सर्जरी आ चुकी है अभी वो भी। तो ये एडवांसेस अभी तक के हुए हैं। एंड लेसिक के बारे में मैं बोलूँ तो पहले जो है, वो सबसे पहले RK इंट्रोड्यूस हुआ था, रेडियल कैरेक्टोटोमी। अच्छा। ओके। उससे नंबर कम किया जाता था, बट अभी वो बैन हो गया है क्योंकि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। तो अभी लेसिक चल रहा है, एंड लेसिक के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, तो इसलिए लेसिक ही चल रहा है। ओके। सो आई मीन आपका जर्नी इतना इनोवेटिव रहा है, यू हैव बीन कंप्लीटली फेमिलियर विथ एवरीथिंग, लाइक या ओल्ड कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता है और आपने न्यू भी कर ही रहे हो आप। तो आपकी स्टडी के हिसाब से ऐसा कोई एरिया है जो अभी तक के मास्टर नहीं हुआ है, एंड आपको पता चल गया कि ये इशू है और इसको करेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर? सो डू यू हैव एनीथिंग इन माइंड लाइक दैट? So there are only two questions left. The one question is, what message you would love to give to the viewers today? They have been या listening to us from last an hour. What is the message? the very first message that I would like to give, that every person should means the parents of the child, जब हम देखते हैं कि एक 8 साल का बच्चा हमारे पास आता है, एंड उसकी आंखों का विजन काफी कम रहता है, एंड उसको चश्मे का नंबर रहता है, बट उसको नंबर रहता है तो 3 साल से 5 साल से, हाँ। बट वो आता हमारे पास 8 साल की एज, नंबर है, एंड इफ द चाइल्ड इज नॉट वेयरिंग द ग्लासेस, देन कुछ अमाउंट ऑफ विजन जो है उनका कम हो जाता है, तो उसे एम्ब्लायोपिया कहते हैं। बिकॉज फर्स्ट 8 years ऑफ अवर लाइफ, उसमें विजन धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते रहता है, यानी बढ़ते रहता है फर्स्ट 8 years में।
सो इन फर्स्ट 8 years में अगर किसी बच्चे को चश्मे का नंबर है एंड इफ ही इज नॉट वियरिंग, देन उसका थोड़ा विजन कम हो जाएगा। तो इसलिए हर बच्चे को एक अर्लीस्ट में 3 years पे एक बार चेकअप कराना चाहिए, फिर एक बार 5 years पे, फिर एक बार 8 years पे, उसके बाद फिर लगे तो 5 years भी करवाए तो भी चलेगा। पर 40 years, 5 years में 50 years तक कराना चाहिए एंड फिर 50 years के बाद एवरी ईयर तो भी एटलीस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को वन आई में विजन कम रहता है, लेकिन हम कभी अपनी वन आई क्लोज करके नहीं देखते हैं, तो अदर आई से हमको अच्छा दिखते रहता है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा दोनों आंखों का विजन अच्छा है। बट जब हम जस्ट रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, एंड जब डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट रहते हैं वो तो हमेशा ईच आई को चेक करते हैं, मीन्स एक आई को बंद करके चेक करते हैं। तो तब किसी पेशेंट को एक्सीडेंटली पता चलता है कि अरे यार, मेरे ये राइट आई में तो विजन काफी कम है एंड अभी तक मुझे पता ही नहीं था। तो ऐसे काफी केसेस हम देखते हैं अपने रूटीन प्रैक्टिसेस। तो हमेशा रूटीनली भी अपनी एक आय बंद करके देखना चाहिए कि कहीं मुझे एकदम कम तो नहीं दिख रहा है। जो डायबिटिक्स रहते हैं उनके शुगर कंट्रोल नहीं होने के कारण वन आई में विजन कम हो जाता है, बट अदर आई इज गुड, सो एक आई का विजन कम तो नहीं है। या आई होप तो ये मिस्टेक प्लीज ना हो, बिकॉज ग्रोइंग ईयर्स में अगर वो इशू आ जाता है तो इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट फिक्स्ड। तो it's a good message, like, okay, I have seen those kids who have been wearing lot of big ऐसा चश्मा पहनते हैं, छोटे छोटे ही रहते हैं, but if they're careless then it is going to harm them. So it's really nice that you should be going towards a specialist and getting things done there and Yeah. there itself if you're not able to handle such situations in the house itself. तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है, एंड द किड हैव टू यूज दोज ग्लासेस एंड ऑल, सो इट्स रियली नाइस। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है सर, सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने में आ गया है। लास्ट क्वेश्चन इज, मैं ये हमारे मतलब टॉक शो की ग्रोथ के लिए होता है, आई वांट टू गेट अ फीडबैक फ्रॉम यू। जो मैंने ये स्टार्ट किया है टॉक शो, उस पर मुझे आपसे फीडबैक चाहिए। द लेजिट टॉक्स के बारे में उन्हें किस तरीके से अपने लाइफ में आगे जाना चाहिए, हर इंसान को लगता है। एंड ऐसा नहीं कि हमें एक ही बार वो डोज लेना है, हमें लाइफ के हर स्टेज पे वो डोज लेते रहना चाहिए। सो किसी से मोटिवेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, ना ही हिचकिचाना चाहिए। मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ते रहना, एंड आपका शो इसी तरह आगे बढ़ता रहे एंड आप धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे और आप जल्दी ही वीआईपी को भी अपने शो पे पाएंगे, क्योंकि आपका शो को जो concept है, मुझे काफी पसंद आया। Sir, my goodness, wow. जल्दी मुझे लगता है कि सीएम लेवल के आदमी भी आपके शो पे आएंगे एंड दे विल आल्सो गिव यू इंटरव्यू। कभी नहीं मिला, थैंक यू सो मच। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फ्रॉम यू एंड ये कंसेप्ट इतना अच्छा है कि एवरीवन गेट्स अट्रैक्टेड, एंड जब आप किसी पर्सन के बारे में, उसकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में पूछते हो, सो दैट पर्सन इज आल्सो एक्साइटेड टू टेल देयर स्टोरी। थैंक यू सो मच सर, एंड जैसे सो वेरी नाइस कंसेप्ट एंड इट्स हेल्पिंग अदर्स आल्सो। सो इसीलिए जो भी चीज हम दूसरों के भले के लिए करते हैं वो हमेशा ग्रो करती है। सो यू आर गिविंग some motivation those to others, so you are doing something for others, so automatically you will get benefit. You actually noticed why I started this show. जैसे हम जैसे लोगों की ना कोई सुनता ही नहीं है। We have lot to talk about. Yeah. और हमने भी बहुत सारी चीजें देखी है जिसको पता ही नहीं होती है। So this talk show is all about us, very common people who are doing extraordinary things just like you. Thank you so much for coming on the show, sir. सिम्मी ने आपका नाम मुझे recommend किया था, तो I'll thanks to सिम्मी first. सिम्मी, thank you so much सर के बारे में बताने के लिए, एंड सर थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग अ रिक्वेस्ट एंड कमिंग ऑन द शो। होपफुली ऐसा कोई अगर कुछ और प्लान आ जाता है जिसमें आपको लेना पड़े,
तो प्लीज आप बेझिझक हमारे पास आओ और हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं एंड वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस रिलेटेड टू बिल्कुल। सर्टेन डिसीजेस जो आजकल बहुत चल रही है। एक और चीज हुई है, सम ऑफ द पर्सन इन द कमेंट सेक्शन सेड कि आजकल के बच्चे जो स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो व्हाट रिकमेंडेशन विल यू गिव सो दैट वो उनका स्क्रीन टाइम भी थोड़ा नॉर्मल हो जाए एंड आंखों को ज्यादा तकलीफ हम्म। भी ना हो। मैं सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हाँ। अपने बच्चों पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अभी ऐसा है कि किसी की नहीं सुन रहे। वो वीडियो गेम पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि उनके आय का नंबर भी बढ़ रहा है, प्लस उन्हें एलर्जिक डिसऑर्डर्स भी क्रिएट हो रहे हैं, प्लस ड्राइनेस क्रिएट हो रहा है उनकी आंखों में ड्राई। तो हालांकि ये जो कंडीशंस जो पहले बहुत कम रहती थी, राइट। वो उनका जो अमाउंट है वो बढ़ते जा रहा है। उनका जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वैसे बढ़ते जा रहा है। लोगों को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है। तो अपने बच्चों को मोबाइल दीजिए, बट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए। एंड उस टाइम के ऊपर बच्चा देता है। शी ऑल्सो आस्क सर कि अगर ब्लू लाइट प्रोटेक्शन ग्लासेस दिए तो चलेगा क्या? तो जिनका भी वर्क स्क्रीन वर्क 3 आवर्स या 4 आवर्स से ज्यादा रहता है, तो उन्हें ब्लू फिल्टर ग्लासेस पहनना चाहिए। एंड जब भी हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें थोड़ा सा बीच बीच में गैप लेना चाहिए। जैसे एक 20-20-20 रूल रहता है, जैसे कि अगर आप 20 के स्क्रीन पे कंटिन्यू देख रहे हैं, 30 सेकंड का गैप लेना चाहिए एंड 20 फीट दूर, क्योंकि दूर देखने से आंखें रिलैक्स होती है। And वही आप जो आपके नियर स्क्रीन है उसको आप देखते रहेंगे तो आंखें रिलैक्स नहीं रहती है। थैंक यू सो मच सर, काफी इंफॉर्मेटिव और काफी एक्साइटिंग जर्नी था आपका और हमने आज सबने सुन लिया है जो भी लोग थे। एंड प्लस पॉइंट इज कि ऐसी बहुत सी चीजें पता चली है जो लोगों ने नॉर्मली प्रैक्टिस करना चाहिए बट नहीं कर पा रहे, बट आफ्टर दिस आई होप दे विल डू इट। And second thing is, sir, congratulations on everything because you are doing really amazing. आपके जो भी short term goals है, they are going to turn into a big vision one day, and you are going to see the dream coming true that your clinics are on like in every part of our country somewhere, and people are going to get access towards your services. So thank you so much for everything, sir. It was really nice talking to you, and I'm very happy to have you on the show. So, if there is a time when we have a talk again, so please come on our show and let's share more information. Thank you so much, sir. Sure, I will be happy to come back to the show because I like the show. Wow, I mean, there were some problems. Sorry for that. But I am sure, like, there were some questions in my head जो मेरे खुद के थे, and there were some other questions also where I involved like what most of the people might have like doubt on. Somehow I covered everything, and I am so motivated. Like he have been giving a lot of those years to master himself into something, and he created that trust in those people. I think that is mandatory in everything. So if you want to gain that success, you need to gain that trust from the people because they are the ones who are providing you stuff, and they are your clients. You need to keep them happy. So you have to uh, inculcate this quality in every walk of your life, wherever you go, whatever you do. And I learned a lot today. Thank you so much for being there, guys. I'm going to come on 6th of December with one of the other personality, and it is going to be more exciting because that journey is completely awesome and different. So just keep enjoying our show, guys. Thank you so much for always joining our sessions, and I'm going to come soon. So see you guys next time. Bye. Namaste.